You seriously had second thoughts? आवाज आ रही है 1 2 3 4 5. Hi guys, welcome back to my channel. It's Valentine's week and it's also going to be my first year marriage anniversary in February, which is why we have Bharat with us. Beautiful! In case you guys don't know, Bharat is my husband. We got married last year in Feb. How are you feeling about marrying the love of your life? It's a very great feeling. It's a very great feeling. And I was getting married during the process when I was going out for the fairas. I had a feeling is this the right time? Am I doing the right thing at the right time, or should I have waited? You for seriously some time? had second thoughts? No. What? It's not about the second thoughts. You had related to second the thoughts person at the I'm time of marrying. fairas? No, it's not about the second thoughts about you. It's about not even second thoughts. It's about the thoughts you go through when you're taking a very big decision. All of that went out because we had dated each other for a long time. We knew each other in and out. We knew the pros, we knew the cons. We knew what is good, what is great, and even what is not bad, what is wrong. Sometimes the other person has some things which you don't like. Those we cannot frame them as wrong. Second thoughts? Me being wrong? यार भरत ये सब It's not about wrong. It's about everything is not good, right? 80% is good. That's true. 20% Marriage is not something. perfect. No, marriage is perfect. Marriage is perfect because we make it a perfect thing, right? When we know that what is good about the other person, what is also bad. Bad, But right, we like the 80% which is good in that person, and we forgive or we let go the 20% wrong we find in the other person. Or Let's give the audience a little bit of context how this video is going to move. In this video we'll be discussing on how we met, okay, how we started dating, then how we decided on getting married. तो मतलब ये थोड़ा सा detailed video होगा on telling my audience how we met, because आप लोग काफी पूछते हो. So we met through our best friends. So my best friend Abhinendra, Vyanshi's best friend Ayushi, they are dating each other. We were going through COVID and everybody was in their hometowns. And you had a lot of time to like We had a lot of time. Chat. So I first remember there was this app called Clubhouse. Yeah. So we created some group on the Clubhouse app. Yeah, and we we were were all just there. casually talking. So Abhinendra introduced me to Divyanshi and Ayushi introduced Divyanshi to me. So we greeted each other. We said hi, hello. No, you didn't say hi. You, मेरा नाम सुनते you left the So chat. I am a very shy person. Yeah. So Divyanshi is a very outgoing person. On the other side, I'm the shy one. So I get overwhelmed about things very quickly, in a good way, not in a bad way. Okay, इससे पहले Clubhouse से पहले भी अभिनेंद्र और आयुषी ने like हमें ऐसा मिलवाने का और बात करवाने का कोशिश किया होगा. In all this process, Bharat followed me on Instagram. And Bharat also sent hi and all of that thing. तो शायद वो मैंने मैसेज देखा था, लाइफ में देखा था. बट जैसे कि आप थोड़े से सोचते हो कि नहीं इसको अभी नहीं, इसको बाद में रिप्लाई करूँगी, तो यही हुआ कि मैंने सोचा कि मैं बाद में रिप्लाई करूँगी. और भरत को लगा कि मैंने मैसेज देख के लाइक आई इग्नोर्ड हिम या व्हाटएवर. तो भरत ने वो मैसेज भी डिलीट कर दिया. भरत ने जो मुझे फॉलो किया था वो भी मुझे अनफॉलो कर दिया. सो दिस इज क्लब हाउस के पहले वाला. फिर उसके बाद कट टू अब ये क्लब हाउस वाला पार्ट होता है जिसमें यू नो आई एंटर दैट रूम एंड भरत मुझे देखते ही इज लाइक आउट ऑफ इट कि अब चलो चले जाते हैं. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब. फिर उसके बाद शायद दिव्यांशी ने अपनी तरफ से फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा नहीं है. ऐसा हुआ कि लाइक वी शुड टॉक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो फिर ऐसे हुआ कि शायद भरत ने ही मुझे हाय भेजा होगा ऑन सोशल मीडिया. फिर मैंने हाय भेजा, फिर दिव्यांशी ने भी हेलो भेजा. फिर 2-3 दिन तक वो हाय हेलो वाला फेज चला जहाँ हम हाय हेलो, लेकिन जहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि दिव्यांशी से और बात एक्सटेंड हो पाए.
तो वो शायद दिव्यांशी की तरफ से भी थोड़ा इंटरेस्ट था और मेरी हाँ। तरफ से तो बहुत इंटरेस्ट था, तो वो दोनों का थोड़ा और बहुत इंटरेस्ट मिलते Right. हमारी बातें होना चालू हुई। तो दिव्यांशी पूरे दिन उस टाइम पे शायद बहुत कंटेंट बना रही थी और मैं भी दिन में बहुत बिजी रहता था क्योंकि हमारा काम था, हम सब एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे थे। हमें रात में टाइम मिलता था, बेसिकली हम रात में शायद दिव्यांशी कुछ 1 बजे तक फ्री होती थी अपना सब काम वाम खत्म करके, तब तक फिर हम 1-1:30 बजे बात होना स्टार्ट होती थी हमारी। फिर पहले दिन बात हुई होगी आधा घंटा, फिर शायद आधे घंटे से ज्यादा हो सकती थी, लेकिन दोनों ने सोचा कि भाई ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ऐसे एकदम ऐसा ना लगे कि पागल हो रहे हैं बात फिर दूसरे दिन 1 घंटा हो गई होगी, फिर वो 1 घंटे से होते होते वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, And धीरे-धीरे there बात आगे came a बढ़ी। point कि both of us were like sleep deprived. ऐसा हो गया था कि यार ना काम, क्योंकि मैं भरत से मिलने से पहले बहुत कंटेंट बना रही थी, ऐसा नहीं बोलूँगी भरत से मिलने के बाद नहीं बना रही हूँ कंटेंट, बट जब आप पूरे सुबह 4 बजे आप सोओगे, 5 बजे आप सो रहे हो, तो आप क्या सुबह उठ के क्या ही बनाओगे कंटेंट? आप सुबह में फिर 12 बजे तक सो रही होती थी। फिर दिव्यांशी रशिया गई, इस बीच में हम मिले नहीं थे, इसमें हो गया 1-2 महीना, तो 1-2 महीना कहाँ, 3 महीने तो बात ही करते करते हो गए थे। 3 महीने हो गए। दिव्यांशी वापस आई, दिव्यांशी को बहुत गुस्सा आया कि भाई उसमें भी हम रशिया में अच्छा, बात कर रहे अब हैं। मुझे बताओ, हाँ, सो भरत थॉट दैट आई एम गोना गो टू रशिया एंड आई एम गोना फॉरगेट हिम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैं रशिया में जाके भी वी आर स्टिल टॉकिंग, और मतलब हम पूरे दिन फेस टाइम कर रहे हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, ये हूँ। फिर रशिया ट्रिप जब मेरी ख़त्म हो रही थी, उसके एंड में मुझे पता नहीं क्या दिमाग में मुझे ऐसा आया कि यार मतलब ये चल क्या रहा है मेरा इसके साथ। लाइक मैं पूरे दिन भर रात में बात करती हूँ एंड ही इज ऑल्सो नॉट इनिशिएटिंग एनीथिंग, लाइक ही मेंशन कि ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम। ही डिडंट इवन से लाइक यू, आई मीन कुछ भी नहीं बोला, लाइक नॉट इवन लाइक एनी रोमांटिक थिंग, ही वॉज जस्ट गेटिंग टू नो मी, दैट वॉज द एंटायर प्रोसेस। मतलब कोई रोमांटिक बात नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। तो 3-4 महीने के एंड पे मुझे लगा यार मैं चल क्या रहा है इससे। तो मैं रशिया से जब वापस आई, मैं कह रही हूँ कि नाउ दिस इज इट, नाउ इट्स यू नो डन, आई एम डन टॉकिंग टू यू, आई डोंट नो वेयर दिस इज हेडेड। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि हम इतना पास रहते हैं, लाइक यू लिव इन कानपुर, आई लिव इन लखनऊ, इतना लाइक 2 घंटे का डिस्टेंस है, तो लाइक गाड़ी यूं पकड़ के इंसान आ जाता है, लाइक व्हाई यू टेकिंग सो मच टाइम। फिर उसके बाद भारत एकदम ऐसे होता है कि शिट, ये तो बात तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ये तो बात जा रही है आवाज से। मैं थोड़ी ना कहूँगी कि आओ मिलो, मतलब ये आना चाहिए ना सामने वाले से। फिर तो जब मैंने बोला कि लाइक दिस इज, तो शायद आए हूँ, हाँ ऐसा कुछ, तो जब मैंने बोला कि नाउ दिस इज डन फॉर मी, अब नहीं होगा मुझसे, फिर भरत वाज लाइक कि शिट अब तो ये बात जा रही है। तो दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट कर। भरत एकदम मुझसे मिलने आया, हम लोग लखनऊ में गए, खाया पिया, व्हाटएवर, वी हैड अ कन्वर्सेशन, चिल किया, अच्छा लगा दोनों को मिलके एक दूसरे से। बट देन ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इट वाज लाइक दैट ओके दिस इज इट, या वी आर डेटिंग नाउ, ऐसा नहीं था। राइट, लाइक वी वर स्टिल लाइक यू नो वी वर टॉकिंग। फिर लखनऊ में पहली बार मिलने के बाद 1-2 महीना और हुआ, फिर शायद मेरा बर्थडे आया इन अक्टूबर नहीं सितंबर में मेरा बर्थडे हाँ, आया। तो सितंबर है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का प्लान बना, मेरा 29 सितंबर को बर्थडे होता है। या द वन थिंग व्हिच इज अगेन कॉमन इन अस इज कि दिव्यांशी वाज आल्सो बोर्न इन सितंबर, आई एम आल्सो अ सितंबर बोर्न। त्रिपाठी फिर हमारा एक प्लान बना जिसमें हम नैनीताल गए। ये इसके बारे में किसी को नहीं पता है। They were my friends, they were Divyanshi got to know my friends as well. So from the kind of friends you have in your life, you also get to know how the other person is, right? So I think Divyanshi got to know me a little bit during that trip, and I also got to know her, and I started liking her. So when we were coming back to our homes, I told Divyanshi that I like you. and he also said ki like I want to take this further, like this is it types, like you know I like you like that much. Right. Yeah. So I told her that I like you and we can take things forward if you are ready. October was the time when we decided to make it more official, more serious. Okay, yes, this is something we want to do. We'll also put a picture here. वो जो हमने साथ में वो
डेट पे गए थे हम दिल्ली में. गुड टाइम, इट वॉज ब्यूटीफुल टाइम. फिर उसके बाद हम मिलते गए भाई. रोज़ बात करना, रोज़ स्लीप डिप्राइव्ड रहना, काम पे फोकस ना कर पाना, यही सब चल रहा था. एंड देन केम अ पॉइंट वेयर भरत हैज़ टू कम बैक टू मुंबई फॉर हिज वर्क. started हम dating फैमिली and को भी मिले तो फिर हो गया 1.5 साल हो गया, फिर 2 एंड साल देन हो गया. एक्चुअली एक ये बात है कि मेरे भाई के पेट में कोई बात पचती नहीं है. सो मेरे भाई ने जाके ऐसे घर पे पापा को बता दिया, मम्मी को बता दिया कि देखो देखो ये रात भर किसी लड़के से बातें करती है, ये सुबह देखो सोती रहती है इसीलिए. और रात में बातें हो गई. मतलब मेरे भाई ने ऐसे पोल खोलने स्टार्ट कर दी मेरी. तो उन लोगों को भी पता चला एंड व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट हिम कि अरे ये तो यहीं का कानपुर का है, मतलब पास का है. और मतलब सारे इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं. फिर थोड़ा सा डिग इन किया तो सारे थोड़े से रिलेटिव्स भी मिल गए हम लोगों को आसपास के. बट माय पेरेंट्स वर रियली सरप्राइज कि मुझे ऐसा एकदम होमली और ऐसा कैसे वो. सो दे वर तो वेरी हैप्पी. दे वर लाइक हाँ चलो चलो अब इसी से करनी है. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, द मोमेंट योर फैमिली गेट्स टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, तुम्हारा गया वहाँ पे. अब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना. आई डोंट इवन नो कि मतलब जैसे ही मम्मी पापा को पता चला, उनको लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सीरियस है ये वो, तो उन्होंने यूं बातों में बना लिया कि चलो उठो अब हो गया ये सब, अब चलो शादी करो. जब ये भरत को बताया गया शादी का, तो भरत वाज सरप्राइजिंगली वेरी ओके विद इट. ही इज लाइक हाँ देवांशी चलो कर लेते हैं शादी. एंड आई वॉज द वन फ्रीकिंग आउट कि यार मतलब चलो अभी हमें 2-3 ही साल हुए हैं साथ रहे हुए, अभी लाइक साथ में भी नहीं रहे हैं हम लोग, लाइक यू नो क्या होगा ये है वो है. बट आई थिंक आई वुड अगेन गिव इट टू भरत इन दिस, लाइक ही इज अ वेरी श्योर गाय. व्हेन इट कम्स टू बीइंग श्योर, ही इज श्योर. लाइक आई एम अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट थिंग्स कि यार पता नहीं क्या होगा, यार ऐसे ना हो जाए. और मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ और भरत हमेशा पॉजिटिव सोचता है. सो भरत ऑलवेज थॉट पॉजिटिव कि अरे क्या है, बहुत सही होगा, चलो कर लेते हैं शादी. सो दैट्स हाउ लाइक यू नो आवर पेरेंट्स एंड देन भरत बीइंग सच अ स्पोर्ट कि वो सारा ऐसी चीज़ें हुई कि हमारी लिटरली 6-7 months में हमारी शादी हो गई. Imagine 7 months of dating नहीं भाई, 6-7 months of प्लानिंग और वो फाइनलाइजिंग. हाँ ऐसे भी क्विकली है लेकिन बढ़िया है. शादी के बाद इफ यू आर मैरिंग द राइट पर्सन, दिव्यांशी इज द राइट पर्सन, मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग. आजकल क्या हो रहा है, मेन चीज़ सब लोगों में कि लोग एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं. लड़ाई होती तो सोचते छोड़ो लड़ाई हो गई, हटाओ छोड़ो जाने दो. तो वो चीज़ थोड़ी अब लोगों को देखना पड़ेगा कि हर हम अपनी ज़िंदगी की हर रिलेशनशिप में, चाहे वो ऑफिस की हो चाहे फैमिली की हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं आगे जाने के लिए. वैसे ही हमें अपनी शादी के जीवन में भी मुझे लगता है हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहिए. दैट मेक्स योर बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड योर मैरिज और योर रिलेशन विद योर पार्टनर वेरी जॉयफुल, ग्रेट, filled with happiness. So yeah. मुझे लगता है आप रिस्क एडवाइजरी से आप रिलेशनशिप एडवाइजरी कर सकते हो. कहाँ जा रहे हो, आउटरो तो करने दो. हो गया. Okay guys, this is it for the video. I will see you in the next video. मुझे comments में बताना if I missed out on anything. And happy Valentine's Day to you guys. Bye bye. Love you. Happy Valentine's Day. Baby मेरी पीठ दर्द हो रही है. हो गया बेबी. We got married.